उनको सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। जो इतनी बड़ी घटना हुई, सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। Let me do the laying of papers. और उसके बाद जो 82 लोग मरे हैं सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से, श्रद्धांजलि। Papers to be laid on the table. After laying the paper, after laying, कार्यसूची में क्रम संख्या 1 पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय श्री कलराज मिश्र जी के नाम के आगे उल्लेखित कागजात को उनकी ओर से उनके अनुपस्थिति हरिभाई प्रतिभाई चौधरी हो गया, बंदारू दत्तात्रेय। I rise to lay the papers on the table of the House mentioned against my name as serial number 2 in the today's revised list of business. श्री धर्मेंद्र प्रधान। Permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name are serial number 3 in today's revised list of business. श्रीमती निर्मला सीतारामन। Sir, with your permission, I wish to lay on the table of the House papers listed against my name at item number 4 in the revised list of business for today, 30th November. Dr. Mahesh Sharma. Commission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. श्री हंसराज गंगाराव अहीर। सभापति महोदय, मैं अपने साथी श्री किरण रिजिजू के नाम के सम्मुख आज के पुनरीक्षित कार्यसूची की क्रम संख्या 6 के उल्लिखित पत्र सभापति में रखता हूँ। श्री विष्णुदेव साई। मेरे नाम पर उल्लिखित कागजात सदन के पद पर रखता हूँ। श्री बाबुल सुप्रियो। Sir, on behalf of my colleague Sri Babul Supriyo, I rise to lay on the table of the House the paper listed against his name as serial number 8 in today's revised list of business. Message from the Lok Sabha Secretary General. I beg to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 29th of November 2016 passed the Taxation Laws Second Amendment Bill 2016. The Speaker has certified that this bill is a money bill within the meaning of Article 110 of the Constitution. I lay a copy of the bill on the table. Report of the Joint Committee on Office of Profits, Sri Dilipbhai Pandya. Right. With your kind permission, I lay on the table a copy of each in English and Hindi of the 14th and 15th report of the Joint Committee on Office of Profit. Thank you, sir. Statement by Minister Dr. Mahesh Sharma. Yes, statement. Sir, with your permission, I rise to make a statement regarding status of implementations of recommendations, observations contained in the 226th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism, Culture on demands for the grants 201516 pertaining to Ministry of Culture. Okay, what is your problem? Yeah. Yes, Sugandhar Roy, what is your problem? Sugandhar Roy, what is your problem? My 26, मैंने 267, Yeah. सर रूल 267 के तहत मैंने नोटिस दिया ताकि ये सदन, ये सभा एक शोक प्रस्ताव ले। जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद 25 आर्मी पर्सोनल का मौत हुआ है। पिछले दिन कल भी 7 आर्मी जवान शहीद हो गए और डिमोनेटाइजेशन के बाद 82 आदमी कतार में शहीद हो गए। इन सबके लिए इस सदन में एक शोक प्रस्ताव आना चाहिए। मैं सबसे अर्जी करता हूं ये शोक प्रस्ताव पारित किया जाए, क्योंकि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे सिटीजन Anyhow, 267 is not permitted. What is Gulala Bibi? What is your point? What is your point? दो ऑफिसर्स, मेजर लेवल के ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स होते फौज के, और उनके समेत 7 हमारे फौजी और सीनियर ऑफिसर शहीद हुए और उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो बहुत गंभीर बात है सर।
और इसी तरह से जैसे सुखंदू जी ने बताया कि 82 लोग, बुजुर्ग, औरतें, मर्द, बच्चे, जो इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से और बगैर तैयारी उन्होंने ये डिमोनेटाइजेशन अनाउंस किया, उसमें 82 लोग मारे गए, उनको भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। श्रद्धांजलि देनी चाहिए, क्यों नहीं श्रद्धांजलि? See, Ghulam Nabi ji, this 81% the citizen died. If it is so, you can raise during the discussion. Yes, Mayawati ji. Mayawati ji, yes. माननीय सभापति जी, मेरा ये कहना है, एक मिनट भाई, माननीय सभापति जी, एक मिनट भाई, माननीय सभापति जी, हमारी पार्टी का ये कहना है, जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है तो तब से लेकर अब तक तो हमारे काफी जवान शहीद हो गए हैं, और अभी रिसेंटली 2 अधिकारियों को मिलाकर 5 और थे, तो 7 हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। लेकिन माननीय सभापति जी, तो सरकार इस मामले में हमें बिल्कुल भी संवेदनशील नजर नहीं आ रही है। और इतना ही नहीं, जो नोटबंदी का बिना तैयारी के तो सरकार ने जो डिसीजन लिया है, तो उससे लगभग 90 के आसपास लोग मर चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इन दोनों मामलों को लेकर सरकार प्रस्ताव लाए, चर्चा शुरू कीजिए। आप लोग चर्चा के लिए तैयार नहीं है। प्रस्ताव आना चाहिए सरकार की ओर से। आप लोग चर्चा के लिए तैयार नहीं है, क्या चर्चा? अध्यक्ष जी, जो 2 विषय जिनका कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है, एक करेंसी का विषय है, एक जो सीमा के ऊपर स्थिति है। करेंसी के विषय पे चर्चा चल रही है, और सीमा की स्थिति के संबंध में अगर विपक्ष चर्चा चाहता है तो सरकार उसके लिए भी तैयार शरद यादव जी, यस बोलिए। शरद यादव बोलिए। शरद यादव, लेट मी लिसन टू शरद यादव। मैं आपके माध्यम से पार्लियामेंट्री जो लीडर हैं उनसे कहना चाहता हूं कि कभी ये नहीं हुआ, फौज में लोग वहां 7 लोग शहीद हुए, 2 अफसर हैं, 5 सिपाही हैं। आप कहते हैं कि ये आपने जो नोटबंदी की है वो देश के लिए की है, तो देश के खातिर जो लोग 90 लोग जो लाइन में खड़े थे, बूढ़े बच्चे, वो सब लोग जो है वो उनका इंतकाल हुआ। नोटबंदी की चर्चा आप अपनी पार्टी में कर लीजिए कि आपकी पार्टी आपके साथ सहमत है कि नहीं है। मैं कोई हम नोटबंदी के खिलाफ नहीं है। हम ये जो नोटबंदी के बाद बर्बाद तबाही हुई है उसके खिलाफ है। लेकिन आप जो मैं सवाल उठाया उस पर आप नहीं बोलते हैं। मैंने जो सवाल आपसे कहा आपके माध्यम से कि शहीद हुए उनके कंडोलेंस सबसे पहले होते थे, क्यों नहीं? चर्चा चाहते हैं आप कर लीजिए। श्री राम गोपाल कंडोलेंस तो पहले होना चाहिए। ये जो मामला और आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में आपके साथ आपके प्राइम मिनिस्टर हैं क्या? भाई आप आपकी बात मान रहे हो क्या? सर, जो मामला सुपेंद्र ने जो मामला उठाया है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो लोग लाइन में खड़े मरे हैं उनको सरकार मुआवजा दे। गरीब लोग मरे हैं उनको कम से कम 10 लाख रुपया हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो। ये इसके गरीब लोग हैं, गरीब लाइन में खड़े हुए थे, अपने जीवन भर की कमाई को बदलना चाहते थे और उसमें मर गए लोग। तमाम लोग बिना पढ़े लिखे फॉर्म भरवाए, पता चला लोगों ने ठग लिया, अपना नंबर भर दिया, पैसा दूसरे के में जमा हो गया। ये हो रहा है। और सही कल यहाँ रक्षा मंत्री कल जो है वो निशाना लगा रहे थे, यूं कह रहे थे, जब हम लोगों ने कहा
और वहां दूसरी चीज हो रही। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। और ऑबिचुअरी सबसे पहले होती है, ऑबिचुअरी सबसे पहले होती है, उसके बाद कोई कार्रवाई होती है। पहले ऑबिचुअरी, उसके बाद कोई कार्रवाई। ऑनरेबल मेंबर्स, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, यस, लेट मी कम टू दैट। सी, यू लिसन। अरे सुनिए सुनिए प्लीज, सुनिए ऑनरेबल मेंबर, अरे दिस इज इनडिसिप्लिन। सी, मैं खड़ा हूं, गुलाम नबी जी, मैं खड़ा हूं। नो प्लीज, नो प्लीज, नो प्लीज, नो। सी, रुको एक मिनट। अरे मिस्टर तिवारी, 1 मिनट, अरे 1 मिनट सुनिए। आई एम, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू से। सुनिए प्लीज लिसन टू द चेयर ऑल्सो। नो, आई हैव गॉट 2 notices. See please, Mistry ji, there are 267 notices. One is from Sri Ghulam Nabi Azad regarding a shortage of currency, and the other is from Sukhinder Shekhar Roy regarding subject is condolences and Jammu surgical strike and the deaths. That is this. Let me say. Yeah. See, both are 267 notice, and from the treasury benches, leader of the house has said government is ready for discussion for both. So you tell which is needed. You tell which is needed. On the gangway में खड़ा। Yes, you can speak. You can speak. Not get permit to speak also. Our person will have to. Parliament sir. Daily we are coming and going. Till now our party could not get the opportunity. We have to bring the issues of outside situation and inside the situation. Every day these parties are making this hangama sir. We want to say bring the issues to the public. What can I do? No, you are giving time every time 3-4 leaders only. We are not about giving time. कौन है?
ગપ ચોળથી રોજ આવેશ 12 બજે તક